आपको लोकसभा लिए चलते हैं, जहां पर विदेश मंत्री भारतीयों को वापस जो भेजा गया है उस पर जवाब दे रहे हैं। Not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. Honorable members, sir, would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, the process of deportation is not a new one and has been ongoing for several years. I would like to share with the House the details of deportation from the United States since 2009. The numbers, years-wise, sir, are listed in my statement. From 2009, there were 734, 2010, 799, 2011, 597, then 530, 515, 591, 708, 1303, 1024, 1180, 242, 805, 862, 617, and 1360. So these are the numbers given by our Bureau of Immigration. The numbers for 2009 to 2014 from the Department of Homeland Security is much higher. Honorable Speaker, sir, deportations by the United States are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. Sir, I repeat to you, these are procedures that came in 2012. They provide for the use of restraint. Sir, I have an American document of 2012 which lays out the restraint procedure. I authenticate it and I would lay it on the table of the House. Sir, however, we are informed by ICE that women and children are not restrained and the needs of deportees during transit relating to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as to military aircraft. There has been no change from past procedures. I repeat, no change from past procedures for flights undertaken by U.S. on 5 February 2020. So, we are engaging the U.S. government to ensure that returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, House will appreciate that our focus should be to crack down strongly on illegal migration industry while taking steps to ease visas for legitimate travelers on the basis of information provided by returning deportees about agents and others involved. Law enforcement agencies will take necessary action. माननीय सदस्यगण, आपसे आग्रह है, केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा है, आप अपनी अपनी सीट पर जाएं। केंद्रीय बजट पर आप चर्चा करना चाहते हैं? चर्चा करना चाहते हैं? केंद्रीय बजट पर चर्चा करना चाहते हैं? माननीय सदस्यों, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं, मेरे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है और महत्वपूर्ण बजट पर आप महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं, वित्तीय विषयों पर अपनी बात रख सकते हैं, अपने क्षेत्र के विकास की बात कर सकते हैं। इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में जवाब दिया। अभी लोकसभा में आप सुन रहे थे, उससे पहले राज्यसभा में भी उन्होंने बताया कि अवैध प्रवासियों को भेजने का कोई नया तरीका नहीं है ये। विदेश मंत्री ने इसके बाद अलग अलग कई वर्षों का आंकड़ा गिनाया, बताया कि पहले भी अमेरिका भारत में यूं ही अवैध प्रवासियों को भेजता रहा है। विदेश मंत्री का कहना है कि जो कार्रवाई हुई है वो अमेरिकी प्रशासन के नियम अनुसार हुई है। एस जयशंकर ने यह भी बताया कि 2012 से अमेरिका इसी तरीके से आर्मी प्लेन में ही भेजता आ रहा है अवैध प्रवासियों को।
विदेश मंत्री ने विपक्ष की तरफ से हथकड़ी लगाकर भेजे जाने के सवाल पर कहा है कि बच्चों महिलाओं को हथकड़ी नहीं लगाई गई, पहले भी ऐसे ही भेजा जाता था। सरकार ने कहा है कि वो अमेरिकी सरकार से संपर्क में है ताकि भारतीयों से कोई दुर्व्यवहार न हो। See, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012, I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. We are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पर विदेश मंत्री जवाब दे चुके हैं। मुद्दा अमेरिका से भारत वापस भेजे गए 104 अवैध प्रवासियों से जुड़ा है, जहां अमेरिका से भारतीयों की वापसी का वीडियो सामने आया। वीडियो में भारतीयों के हाथ पैर में हथकड़ी दिखती है। अमेरिका की बॉर्डर फोर्स ने यह वीडियो जारी किया है। यूएस बॉर्डर पुलिस चीफ के सोशल मीडिया हैंडल से जारी इस वीडियो में कहा गया है कि यूएसबीपी और उसके सहयोगियों ने भारत के अवैध एलियन को सफलतापूर्वक वापस भेज दिया है। आप अगर गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा। विदेश मंत्री के जवाब के बावजूद फिलहाल इस खबर पर संसद में हंगामा रुकता नहीं दिखता। जहां अमेरिका से वापस भारतीयों को भेजने के दौरान हथकड़ी लगाने के खिलाफ संसद के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। विपक्ष का सवाल है कि जब अमेरिका को दोस्त सरकार कहती है तो फिर ऐसा सुलूक भारतीयों के साथ क्यों होने दिया, जबकि विदेश मंत्री साफ कर चुके हैं कि जो हुआ अमेरिकी नियम अनुसार हुआ और आगे विदेश मंत्रालय अमेरिका से संपर्क में है। विपक्षी सांसदों ने संसद में नारेबाजी की, कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सांसदों ने बाहर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने नजर आए, पोस्टर भी लहराए जिसमें लिखा था, बेड़ियों में हिंदुस्तान, नहीं सहेंगे ये अपमान। बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया है। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो
अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है। तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहां पहुंचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को। मैं बहुत आहत हूं ये सुनकर और पढ़कर कि जिस अमानवीय तरीके से जो लोग अमेरिका से वापस भेजे जा रहे हैं उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। वो कोई अपराधी नहीं है, वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रम्प और मोदी जी की दोस्ती है, ऐसे मोदी जी और उनके लोग कहते हैं। फिर भी मैंने जो फोटो और पिक्चर देखा है, हमारे लोगों को हाथ कड़ी पहनाकर प्लेन में बिठाया। अब देखो आज के अखबार में फोटोज है, ऐसे हाथ कड़ी पहनाकर, जैसे कि बहुत बड़े टेररिस्ट है। हाँ, आपकी दोस्ती है ना, तो हमारे भारतीय लोगों का सम्मान तो करने सीखे। मोदी जी आप जा रहे हैं वहाँ, तो ट्रम्प को थोड़ी तमीज सिखाइए। क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कई बार बोल चुका है इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, आप लोग सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी और ट्रम्प का बाय बाय का रिलेशन है सारे। मोदी जी खुद बोलते हैं, और 56 इंच का चेस्ट का अपना सीना टांग के चलते थे मोदी जी। इनका क्या हो गया? हिंदुस्तानियों के साथ ऐसे व्यवहार करा जा रहा है और उनका ऐसे ह्यूमिलिएट कराया जा रहा है। ये चेंज बिठाया जा रहा है, इसके खिलाफ कोई भी बात करने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर जी, कोई भी ऑपोजिशन लीडर कोई पूछता है देश का बारे में, बोलते हैं देश का बेइज्जती कर दिया। और वो विदेश मंत्री जयशंकर जी भूल चुका है, क्यों बात। अमेरिकी सेना का मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर बुधवार को अमेरिका के इस सैन्य विमान में 104 भारतीयों को वापस भारत भेजता है। पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर का भी कहना है कि यह पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी चर्चा इसीलिए हुई क्योंकि ट्रंप ने लोगों की अपेक्षा से थोड़ा जल्दी यह फैसला लेकर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा जनता से किया उसे लागू करना क्या शुरू किया। पूरे अमेरिका में इस फैसले का विरोध शुरू हो गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करते ये अवैध रूप से रह रहे अप्रवासी हैं। इस विरोध के बीच अमेरिका का एक विमान भारत आ चुका है। अमृतसर में लैंड हुए इस विमान में अवैध तरीके से रहने वाले भारतीय हैं, जिन्हें ट्रंप की सरकार ने भारत भेज दिया। भारतीय समय के मुताबिक 4 फरवरी की सुबह 3 बजे अमेरिका से 104 भारतीयों को लेकर ये विमान अमृतसर के लिए रवाना हुआ और 5 फरवरी की दोपहर 1:55 पर लैंड हुआ। ये पहली बार है जब अमेरिका ने अवैध अप्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमान C-17 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया। भारतीय नागरिकों को लेने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद रहे। अमेरिकी दूतावास का एक प्रतिनिधि भी हवाई अड्डे पर मौजूद था। शाम 7 बजे के आसपास पुलिस की गाड़ियों में इन सभी भारतीयों को एयरपोर्ट से बाहर ले जाते हुए देखा गया। अमेरिका से जो भारतीय आए वो अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। इनमें से 7 भारतीयों के साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने मुलाकात की। अमेरिका से आए अवैध प्रवासियों में सबसे ज्यादा हरियाणा और गुजरात के लोग हैं। इसके अलावा पंजाब से 30, महाराष्ट्र से 3, यूपी से 3 और चंडीगढ़ से 2 नागरिक शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार वापस भेजे गए अधिकांश लोगों को अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर पकड़ा गया। हालांकि ये लोग भारत में अपराधी नहीं हैं। 20 जनवरी को ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कानून लैक एंड रिले एक्ट पर साइन किया और फेडरल अधिकारियों को अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में अवैध अप्रवासियों को देश से निकालने का वादा किया था। उन्होंने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने को कहा था। अब सवाल यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप खुद को भारत का सच्चा दोस्त कहते हैं, उन्होंने अमेरिकी सेना के विमान से भारतीयों को वापस क्यों भेजा? अमेरिका में ऐसा पहली बार है जब अवैध प्रवासियों को भेजने के लिए
सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा हो, जबकि इसका खर्च सिविल प्लेन के मुकाबले करीब 5 गुना ज्यादा होता है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप परेशान नहीं है। इसकी वजह जानकार इसमें छिपे संदेश में देखते हैं, जिसके जरिए अमेरिकी सरकार ये कहना चाहती है कि अगर भविष्य में कोई भी अवैध तरीके से अमेरिका में आता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले भारतीयों की वापसी की पहली खेप है। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 7,25,000 भारतीय अवैध प्रवासी हैं। इनमें से करीब 17,000 के खिलाफ फाइनल रिमूवल ऑर्डर आ चुका है, यानी इनका अमेरिका से जल्द भारत आना तय है। अमेरिका से लौटे भारतीयों में 8 से 10 साल के बच्चे भी शामिल हैं। खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।